students, welcome to all of you. I am Shweta Sinha here and you all are with me in our next numerical session, and the topic is same, combination of resistance. Yes students, in previous lecture we have done some basic arrangements of resistances. Okay, from here we have learned that when the resistance are in series combination, when the resistance are in parallel combination. Okay, now in this video we are going to do some more question based on combinations of resistance. Okay, so first here I have given three questions. Okay, and these all three questions are going to solve via using a single concept. So today first let's see what is that concept, then we will proceed for solution for these. Okay, so students, concept is not new, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब आप पढ़ चुके हो, बस उसको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए देखना है कि हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे. वी नो स्टूडेंट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड so on till n. Okay, if I say all the resistances are equal, means they have not different value, all the resistance have same value. In that case, what can you write? R equivalent become R plus R plus R plus n time. Okay, so R plus R and n time. Okay, now because if I am assuming there are n number of resistance, so I can also write this R equivalent is equal to n multiply R, n number of resistance multiply one value of resistance. So this is the total value of R resistance in series combination when you have number of resistance with same value. Okay, similar case let's see in parallel combination. What is the formula of R equivalent in parallel combination, student? 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2, okay, plus 1 upon R3, like this, and 1 upon Rn. And the case is same, all the resistance have same value. So what can we write? R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R, means all resistance has common value. तो आपको नंबर देने की जरूरत ही नहीं है इनको, ठीक है. So now R 1 upon R equivalent will be what? 1 upon R plus 1 upon R plus 1 upon R and n time 1 upon R, because n number of resistance, so n time 1 upon R. So I can write 1 upon R equivalent is equal to n time 1 upon R. Okay, n time 1 upon R. Yes. So what would be the value of R equivalent, students? R by n by taking inverse. Okay, 1 upon R equivalent is equal to n into 1 upon R. So R equivalent will be what? R by n. So this is two concept you should remember. If there are, two formula, one for series, another for parallel, but concept is same. If there are n number of resistance have same value, in that case R equivalent in parallel case will be R by n, where R is the value of resistance, okay, and in series case n into R. So you remember this thing. For next point, लेट्स सी. फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये दो फॉर्मूले याद रखना है, ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट अभी मैं आपको बताती हूँ. सो स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट इज ऑन अ लाइन ऑल पॉइंट्स आर एट इक्वल पोटेंशियल. ऑन अ लाइन मीन्स स्टूडेंट्स व्हेन देयर इज नो अदर एलिमेंट बिटवीन टू पॉइंट. ओके, आई कैन से दिस लाइन व्हेन देयर इज नो अदर एलिमेंट, मतलब बीच में कुछ कोई भी एलिमेंट नहीं है, ना रजिस्टर है ना कोई जॉइंट पॉइंट है, तो आप क्या बोलोगे कि एक लाइन है जिसपे है ना पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा. मीन्स वॉट एवर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ए, द सेम वैल्यू विल बी एट बी. Okay, oh, and I can consider this line as a point.
ओके, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि ए और बी जो है वो एक ही जगह पे कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट सेकेंड पॉइंट एंड दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बाय यूजिंग दीज 2 पॉइंट. एंड ये 2 पॉइंट अगर आपको अच्छे से आ गए समझ में तो ये तीनों क्वेश्चन आपके बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है. ये वाला कॉन्सेप्ट तो इसलिए यूज किया है क्योंकि ये कैलकुलेशन में यूज होगा, because in all 3 question we are using equal value of resistance, okay, and this will help you to find out when the resistance are in series, when they are in parallel. Okay, so come to the first question. In this question, students, you will see there are 2 point A and B, and question is find R equivalent between A and B. Okay, this is the question. Now what you need to do, first step same, find out when they are in parallel, when they are in series. सबसे पहले तो यही पता कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है और कैसे है. ओके, बाय लुकिंग एट दिस सर्किट वी कैन सी दिस सर्किट इज कॉम्प्लेक्स. आपको ऐसे जल्दी से तो नहीं समझ में आएगा कि कौन से पैरेलल में है कौन से सीरीज में. सो दिस हम इसको बहुत ध्यान से देखते हैं कि जैसे पॉइंट ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है आपके पास आर. That means point is at different potential and this point is at different potential, but from here to here potential is same because this is a line. कह सकते हो ना, इसका मतलब क्या है, this resistance and this resistance they both have their one end at point A. मैं इस पॉइंट को भी A ही नेमिंग दे दूं एंड इस पॉइंट को मैं B दे देती हूँ, ठीक है. नो प्रॉब्लम इन दिस बिकॉज we know that on a line potential remains same. जितना पोटेंशियल यहाँ पे है उतना पोटेंशियल यहाँ पे है, जितना पोटेंशियल यहाँ पे है उतना पोटेंशियल यहाँ पे है, ठीक है. सो वी कैन सी these 2 resistance have common point, these 2 resistance have common point. ओके, अब हम ध्यान से देखें. सबसे पहले हम इस रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है. दिस रेजिस्टेंस हैज वन एंड एट A, अनदर एंड एट B. तो सबसे पहले मैं 2 एंड बना लेती हूँ, A and B, to simplify this circuit. Okay, like this. Now take this one. This resistance have one end at A and then another end is connected by R. ये दोनों तो सीरीज में है, no problem in this. Okay, this symbol means they are connected regularly. Okay, so R plus R and their end point is at B. So can I make this circuit like this? दिस रेजिस्टेंस अरेंजमेंट. ओके, है तो ये वाला इस दिस वन इसका वन एंड ए पे है, दूसरा एंड बी पे है, ठीक है. नाउ दिस अरेंजमेंट चेक अगेन, वन साइड ए एंड अनदर साइड एट बी, और बीच में क्या है, ये सीरीज में है, ठीक है. सो अगेन लाइक दिस. नाउ रिमेनिंग दिस वन, अगेन one point is at A, another point is at B. So this is your simplified circuit. Okay, now it is easy to get where the resistance are in series, where the resistance are in parallel. We can see these 2 are in series, so I can put this value, how much, 2R, R plus R, 2R. Okay, 2 resistance equal value. So अब इन दोनों की जगह हम क्या लिख देंगे, 2R. Similarly at this place 2R and this is R and this is R. Now can you solve this arrangement? Because all the resistance are in parallel combination. तो पहले तो आप इन दोनों को देख लो, ये दोनों इक्वल वैल्यू के हैं, 2R और पैरेलल में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, R/N. मीन्स इन दोनों का अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, R/N, 2R/2. According to the formula, R/N, value of R is 2R for these 2. I am talking about these 2 branch. Okay, 2R by number of branches 2. So it is R actually, and this is R, this is R. Now 3 equal value of resistances are connected in parallel. Okay, so
final R equivalent will be what? R by 3. So this is the manner how you will solve these type of question. Okay student, I think no problem in this. सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले फाइंड आउट करना, आप सिंपली 2 पॉइंट उठा लेना, उसके बीच में रेजिस्टेंस को अरेंज करने में लग जाना है, ठीक है। जैसे ए और बी को देख लिया मैंने, मुझे ये पता है कि ये पॉइंट ए है तो ये भी ए है, ये पॉइंट बी है तो ये भी बी है, फिर उसको सिंप्लीफाई किया। अब पिक्चर क्लियर है हमारे पास, कौन सी चीज पैरेलल में है, कौन सी सीरीज में है, और हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और कैलकुलेशन को इजी, वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 1/r प्लस 1/2r, इस तरह से भी कर सकते थे, 1/r प्लस 1/2r ऐसे। ये थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन को क्या करती, कॉम्प्लेक्स कर देती। अगर आपके पास ये फॉर्मूला है और आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि पहले हम इनको सॉल्व कर लें, सेपरेटली सॉल्व कर करके थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इजी कैलकुलेशन हो जाएगी एंड लेस टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट वी डू अगेन सेम स्टेप। फर्स्ट मेक पॉइंट्स, ओके, ए एंड बी, बिकॉज हमारे को इनके बीच में ही आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। नाउ चेक 1 by 1 ब्रांच, जैसे हमने इसमें भी किया था, पहले इस ब्रांच को चेक किया, फिर इस ब्रांच को चेक किया, इसको किया, इसको किया, ठीक है। तो इस तरह से इसमें करेंगे। तो इस ब्रांच में देखें तो एक ही लाइन में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है एंड डैश 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 मीन्स नो नंबर इज नॉट डिफाइंड कि कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। सो इन दिस केस वी विल टेक n number of resistance. So students, in first branch n number of resistances are connected in series. That means R equivalent for this branch should be what is NR. Okay. So just अब इतने सारे रेजिस्टेंस हमारे को लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारे को पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी है, NR. Okay. Now look at these. They all are in parallel. क्योंकि सबके पॉइंट क्या है, ए पे जा रहे हैं, दूसरा पॉइंट बी पे जा रहा है, सबके साथ यही है, ठीक है। सभी ये सारे पॉइंट तो कॉमन है ना, ये वाले ये वाले ये वाले, ठीक है। सो they all are in parallel combination and this is also going towards n dash 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 n. Okay, so just then what about these? I can directly write r by n because they are in parallel combination. So now this is r by n. Now this nr and r by n both are in parallel combination. So what would be r equivalent value? R1 into R2, यही होता है ना टू वैल्यूज के लिए। अब यहाँ पे तो हम ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते, वाई, बिकॉज बोथ हैव डिफरेंट वैल्यू, दिस है NR, दिस हैज NR, दिस हैज R by N। सो हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 करके सॉल्व किया था जो, ठीक है। अब R1 की वैल्यू कितनी है, NR, R2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, R by N, देन NR plus R by N. Okay, now let's solve these. NR into R by N, N to N cancel. This is R square. Okay, R dot R and NR plus R by N, N square R plus R and LCM N. This is, so we can write N square R upon N square R plus R. So this is the final equivalent value. Okay students, are you getting this? Yes. तो इस तरह के क्वेश्चंस में वही हमारे को सबसे पहले चेक करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में कौन से हैं, सीरीज में कौन से हैं, उनको हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड हमारे सर्किल को जितना हो सके उतना सिंपलर फॉर्म में लेके जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन अ सर्कल इज गिवन। अब स्टूडेंट, अब एक सर्किल है, सर्किल की ये क्या है, सर्कमफेरेंस, दिस इज द सर्कमफेरेंस, ओके। एंड if we see on the circumference no other resistance is connected. circumference तो क्लीन है आपका, इसके बीच में है जितने रेजिस्टेंसेज हैं, तो मैं ये बोल सकती हूँ ना स्टूडेंट की सर्कमफेरेंस क्या है, एक लाइन, बिकॉज नो अदर एलिमेंट इज कनेक्टेड, ठीक है। तो इस लाइन पे क्या हो गया स्टूडेंट्स, सारा पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। जैसे इस पॉइंट की वैल्यू बी है, हर पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, बी होगी। आप बोल सकते हो ना एक ही लाइन पे है सारे। अब ये देखो, अब हमारे पास सिंप्लीफाई करना है, तो
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम सिंगल सिंगल रेजिस्टेंस ब्रांच चेक करते हैं, ठीक है। अगेन देयर आर 2 पॉइंट, पॉइंट ए, पॉइंट बी, ओके। नाउ फ्रॉम पॉइंट बी, अब यहाँ पे भी पॉइंट बी ही है, यहाँ पे भी पॉइंट बी है, पॉइंट बी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल V मानूं तो यही पोटेंशियल इन सब पॉइंट्स पे है, ठीक है। तो B से आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, देयर आर फॉर दिस रेजिस्टेंस वन एंड इज कनेक्टेड टू B, फॉर दिस रेजिस्टेंस वन एंड इज कनेक्टेड टू B, फॉर दिस रेजिस्टेंस वन एंड इज कनेक्टेड टू B। इसका मतलब B से 3 रेजिस्टेंसेस निकल रहे हैं, ओके, ऐसे। अभी सेकेंड एंड का हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन इनके फर्स्ट एंड तो क्या है, बी से ही कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है, एक ही लाइन पे हैं ये सारे, इनके वन एंड, जो इन 3 रेजिस्टेंस का वन एंड है वो एक ही लाइन पे है, ओके, इस तरह से। अब इनके सेकेंड एंड की देखते हैं। सो इन तीनों के तो सेकेंड एंड फॉर दीज 3 रेजिस्टेंस, सेकेंड एंड इज ऑल्सो कनेक्टेड एट कॉमन पॉइंट। अब वो कॉमन पॉइंट कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, ए तो नहीं है वो, वी कैन सी क्लियरली ए नहीं है वो कॉमन पॉइंट, ठीक है। वो कॉमन पॉइंट क्या है, जैसे आप देखो कि ए पॉइंट से एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ए पॉइंट से एक आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस, जिसके इस रेजिस्टेंस के सेकेंड एंड से इन तीनों का सेकेंड एंड कनेक्ट हो रहा है, मतलब ये तीनों जो हैं वो एक साथ ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं। सी दिस पिक्चर, ओके, ऐसे। और इन तीनों की वैल्यू क्या है, R R R, एंड वी नीड टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ओके। आर यू गेटिंग दिस पिक्चर स्टूडेंट्स? इसको हमने क्या किया है, बस इस सर्किल को देख के हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है, 2 पॉइंट्स बनाए, पॉइंट A, पॉइंट B, देखा कि पॉइंट B से 3 रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, 1 2 3, तो यहाँ से 3 रेजिस्टेंस निकाल दिए, 1 2 3। इन तीनों रेजिस्टेंस का जो वन एंड है वो किसी और पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है, और वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट जो है, एंड स्टूडेंट देयर नेक्स्ट एंड इज कनेक्टेड एट कॉमन पॉइंट, सो आई कैन मेक इट लाइक दिस, नो प्रॉब्लम इन दिस, ओके, क्योंकि ये तीनों का, या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो इस तरह से, ओके। बात तो वही है कि ये इन तीनों का वन एंड तो बी पे जा रहा है और सेकेंड एंड जो है वो इसके सेंटर पे जाके मैच हो रहा है, तो ये तीनों क्या हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, एंड 3 रेजिस्टेंस विद इक्वल वैल्यू, व्हाट वुड बी द रिजल्टेंट वैल्यू फॉर दिस, R/3, ओके, R/3, यस। नाउ अब ये पोर्शन तो आपका सिंप्लीफाई हो गया, बचा आप कौन सा, जो भी रिजल्टेंट आया उसके साथ ये वाला रेजिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, सीरीज में है, यही है ना पॉइंट ए, एंड इसके साथ जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो किसके साथ है, इन तीनों के साथ, जिसकी वैल्यू कितनी आई है, R/3, और वो कहाँ पे गया हुआ है, बी पॉइंट पे, चेक, R/3 की वैल्यू कहाँ पे ऐड हो रही है, बी पॉइंट पे, ठीक है। So this is R/3 and this is R. What would be the resultant value? R equivalent. Both are in series. So R plus R/3. That is 4R/3. So this is the R equivalent for this circuit. So student, you can solve these type of question by using these 2 points. Okay? इस पॉइंट से तो आपकी कैलकुलेशन देखो कितनी इजी हो रही है, अभी आप 1/R करके करते, ठीक है, एंड हमारे को पता चल गया कि इस पॉइंट से हमारे को ये चीज पता चल जाएगी कि ये तीनों एक कॉमन पॉइंट पे हैं। तो अब से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर किसी लाइन पे अलग अलग तरह से रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रहे हैं तो ये मत सोचना कि ये तीनों अलग अलग पॉइंट पे, ये तीनों एक ही पॉइंट पे हैं, ठीक है, यस। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।